Good morning, students. Continuing with the same chapter, cube and cube roots. Today we will do exercise 4D. It is objective type questions. Now, first question is, which of the following number is a perfect cube? Dear students, if you can recall the perfect cubes, you can easily tick the MCQs like 216 is the answer. And if you are not able to recall, you have to do the prime factorization of each number like I have done. And you can see that the C part 216, the perfect triplets has been formed, so C is the right answer. This is the similar question, which of the following number is a perfect cube? Again, what we have to do? We have to do the prime factorization of each and every number, and then we can see which is a perfect cube. See, like B option is correct. It is a perfect cube of 11, and so B is the answer. B is the answer for this question. Now, question number 3. We have to find out the cube root of 512. Dear student, this number to we have done many times in the previous module also and live class also. So here I have done the prime factorization. Now cube root of 512 is equal to cube root of all the factors, multiplication of all the factors. Then we will make a group of 2, 2, 2, 3 times, means triplets we have to find, and we have to make the triplets, and after that we will write cube root of 2 cube into 2 cube into 2 cube. Now the powers are same, the bases will be multiplied. This will be 2 into 2 into 2 cube under the cube root sign, which is equal to the cube root of 8 cube. So this will become 8. So 8 is the answer. So option C is right. Now in this question, cube root of 125 into 64, the property of when the two numbers are multiplied under the cube root sign, this is equal to the cube root of individual number. This property we will use. So the cube root of 125 into 64 is equal to cube root of 125 into cube root of 64. Here I have done the prime factorization. In the same way, what we will do, we will form the triplets. So 125 is equal to 5 cube and 64 is equal to 2 cube into 2 cube. Here powers are same, bases will be multiplied, so 64 will be equal to 4 cube, like this in this step. Then the cube root sign will be removed and 5 and 4 will come out and will multiply. So answer is C, 20. Now question number 5. Here the property of this rational number, we will use A by B, and it's a cube root, then the cube root of numerator and cube root of denominator. So we will find out the cube root of 64 and 343. Here we have done the prime factorization. So 64 is equal to 2 cube into 2 cube, that is equal to 4 cube. 64. Here is the step. Now 343 is equal to 7 cube. Here we have written 7 cube. Now cube root of 4 cube is 4 and cube root of 7 cube is 7. So 4 by 7 is the answer. So B is the correct option. Now next question is cube root of negative 512 upon 729. See here, negative number is there. So we know in place of this negative sign, we will write negative 1 cube and denominator as it is. Now here we have done the prime factorization of both the numbers.
So 512 is equal to 2 cube into 2 cube into 2 cube. Now this is equal to 2 into 2 into 2 is 8 cube. Similarly 729 is equal to 3 cube into 3 cube. So 3 into 3 is 9 cube. Here we have written, and minus sign will come out because here the minus 1 cube. This I have already explained you how it is being done. Now cube root of 8 cube and is 8, negative sign already है, and cube root of 9 cube is 9. So negative 8 by 9 is the answer. So B option is correct. Now question number 7. By what least number 648 be multiplied to get a perfect cube? बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर देखना है कि कौन से ट्रिपलेट नहीं बने हैं और ट्रिपलेट बनाने के लिए उनको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. तो स्टेप 1 इज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो हियर इज द सॉल्यूशन. सी, आई हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ triplet of 2 and 3 is found, but 1 3 is alone. 648 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 means 2 cube into 3 cube. अब इसमें 3 बच गया. अब 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें इसको 3 into 3 दो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 3 into 3 is 9. So we will multiply it by 9. So option is C. You can see the answer is C, 9. Question number 7. Now question number 8. By what least number should 1536 be divided to get a perfect cube? अब इसमें भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और जिन नंबर्स का ट्रिपलेट नहीं बना है उन नंबर्स को हम इस नंबर से उन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे. नाउ हेयर वी हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो 2 का ट्रिपलेट बन गया, 2 का ट्रिपलेट बन गया एंड 2 का ट्रिपलेट बन गया. मीन्स 1536 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब. बट 3 जो है वो हमारे पास अकेला बच गया है जो ट्रिपलेट नहीं बना है. तो हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा. और वो नंबर किसके इक्वल होगा? 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. That is 3, 8th में. Now question number 9. We have to find out the cube of this mixed fraction. सबसे पहले 1 3/10 को हम कन्वर्ट करेंगे 13/10. इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्यूब ले लेंगे. जब हम क्यूब को निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2197 अपॉन 1000. अब हम इसको कन्वर्ट करते क्योंकि आंसर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में तो और इसलिए हमने इसका जो सॉल्यूशन निकला है उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. हमें यहाँ ऑप्शंस भी देखने होंगे कि हमें आंसर जो है किस फॉर्म में वो मांग रहा है. इधर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर्स दिए हुए हैं तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. अब देखिए मैंने आपको कहा था दिस इज़ अ डेसिमल नंबर का क्यूब. अब आंसर भी हमारे डेसिमल्स में दिए हैं तो हमें आंसर डेसिमल में भी निकालना है. इसको हम इजीली शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 0.8 मैंने आपको पहले भी समझाया था. 0 इंटू 0.8 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लें, आंसर आ जाएगा 512. अब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? 3. तो राइट हैंड साइड से यूनिट प्लेस से काउंट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएंगे और 3 प्लेसेस के बाद आप डेसिमल लगा देंगे. तो 0.512 इज़ द आंसर. सी इज़ द ऑप्शन. सी हियर. C is the option. Here is the solution which I have done. Now dear students, we have to do some extra topics which I am explaining you. It is not given in the book, neither given in the book nor these topics are coming in your test, but these questions are for your extra knowledge. So the cube root of a decimal number. अब decimal number आ जाए तो cube root हम कैसे निकालेंगे? अब बेटा ये परफेक्ट क्यूब
ये जो क्यूब रूट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो परफेक्ट क्यूब वाले नंबर हैं उन्हीं का क्यूब रूट बता रही हूँ। जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते उसका मेथड आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में ये। बट परफेक्ट क्यूब जो हैं डेसिमल नंबर वाले, उनका ये मेथड है। तो क्यूब रूट ऑफ 0.125, देखो बेटा इसमें हम डेसिमल को जब हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा। तो अब ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब मिसिंग है, क्यूब हो जाएगा अलग से। जब इसका क्यूब रूट हो जाएगा तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब एंड 1000 इज इक्वल टू 10 क्यूब। तो हेयर वी हैव रिटन, तो दिस विल बिकम 5/10 एंड 0.5 इज द आंसर। सिमिलरली 0.027, अब हमने 0.027 को जब क्यूब रूट में लिया तो इसका डेसिमल हटाया तो नीचे आया 1000 आया। अब 1000 आने के बाद हम इसका 27 का क्यूब रूट ले लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ 1000। अब 27 का क्यूब रूट निकाल लेंगे और 1000 का निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हेयर आई हैव डन। तो 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब एंड 1000 इज इक्वल टू 10 क्यूब। तो 3/10, तो आंसर इज 0.3। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर का भी क्यूब रूट निकल सकता है जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, ठीक है। और जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते उनका क्यूब रूट कैसे निकलता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब क्यूब रूट का आपका एप्लीकेशन कहाँ है डेली लाइफ में ना, देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स मतलब एक क्यूब शेप का बॉक्स है, उसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में भी आएंगे जब आप एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस करेंगे, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में आएंगे। अब यहाँ पे दिस इज मीटर क्यूब बेटा, दिस इज मीटर क्यूब, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 13,824 मीटर क्यूब एंड फाइंड द लेंथ साइड ऑफ द बॉक्स। हमें पता है कि अगर एक क्यूब है तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं और उसको हम साइड कहते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबिकल बॉक्स होता है वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, मीन्स एस इंटू एस इंटू एस भी लिख देते हैं इसको। तो साइड क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम। अब यहाँ पे जब अगर इधर एक क्यूब है तो ये अगर हमें इसकी साइड निकालनी होगी तो दोनों साइड हम क्यूब रूट ले लेंगे। देखो कैसे, साइड क्यूब का क्यूब रूट लिया और इधर वॉल्यूम का क्यूब रूट लिया, तो ये इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में साइड आ गई, तो साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम का क्यूब रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम इन केस ऑफ अ क्यूब, ओनली इन केस ऑफ अ क्यूब, बिकॉज इसकी तीनों लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों एक ही डायमेंशन की होती है। तो हमें अब इसका क्यूब रूट निकालना है। अब हम 13824 के तो प्राइम फैक्टर्स करेंगे और मीटर क्यूब का जब क्यूब रूट होगा तो वो हो जाएगा मीटर, ओके। नाउ हेयर वी हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन। सी हेयर वी हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,824। अब यहाँ पे परफेक्ट ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 2 2 2 के और 3 के, यानी कि 13824 जो है 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब के बराबर है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू द 24 क्यूब। तो हमने यहाँ 24 क्यूब लिख दिया। अब इसका क्यूब रूट लेंगे तो 24 मीटर इज़ द साइड। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आप इसको ध्यान से करिएगा। नाउ फॉर टुडेज होमवर्क यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चंस एक्सप्लेन्ड इन योर क्लास वर्क कॉपी and do test paper 4 which is given on page number 17 in the practice register as a assignment 1 of chapter 4। ये chapter 4 की फर्स्ट असाइनमेंट है क्यूब एंड क्यूब रूट की, एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द लाइव क्लास 2। सो बी रेडी विद योर असाइनमेंट रजिस्टर्स। ये आपसे डिस्कस होगी और आप साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसको आप असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड करेंगे बाय 19। सो
जब आपकी लाइव क्लास हो तो अपने रजिस्टर्स लेके बैठिएगा, इट विल बी डिस्कस इन द लाइव क्लास। तो आप उसको साथ साथ करेंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे, और ये आपको प्रैक्टिस रजिस्टर में करनी है। सो इन दिस वे वी हैव completed this chapter. Thank you.